جی السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. میں اکثر اپنے شو میں اپنے رشتوں سے محبت کے حوالے سے بات کرتی ہوں. محبت ہماری ماں سے ہو، ہمارے والد سے ہو، ہمارے بہن بھائیوں سے ہو، ہمارے دوستوں سے ہو، شریک حیات سے محبت ہو، ایون کہ آپ کے پیٹ سے محبت ہو، اپنی چیزوں سے محبت ہو. آپ کے کمرے میں، آپ کی الماری میں کچھ ایسے کپڑے ٹگے ہوتے ہیں جن کو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں استعمال نہیں کروں گی، لیکن آپ کو ان سے بھی محبت ہوتی ہے. ہم اس محبت کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک محبت جس کے حوالے سے ہم لوگ زیادہ باتیں نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ اس محبت سے آشنا ہی نہیں ہیں، اور ان بہت سے لوگوں میں میں بھی آتی ہوں. جب میں پریگننٹ تھی نا، تو میں نے ایک چیز سوچی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ میں اس کو ایک چیز تو ضرور سکھاؤں گی، اور وہ تھی سیلف لو، خود سے محبت کی بات. کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے مواقع میں بہت فیل ہوا کہ میں اپنی بہت ساری چیزوں میں اپنے رشتوں کو، اپنے دوستوں کو اور دوسری چیزوں کو آگے رکھتی ہوں، مقدم جانتی ہوں، اور اپنی بہت ساری پیچھوں کو، اپنی ہیلتھ کو بس میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہوں. وہ گھروں میں سکھایا جاتا ہے نا، تربیت کا ویسے بھی حصہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ کوئی سالن پڑا ہوا ہے جس میں اگر ایک بوٹی ہے تو وہ بوٹی آپ نے نہیں لینی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سے پہلے دسترخوان میں اور جتنے جو لوگ بیٹھے ہو نا وہ کھا لیں. یہ تو اچھی بات ہے، مینرز میں بھی آ جاتی ہے. لیکن ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں سوچنا تو ضرور چاہیے. تو کیونکہ مجھ میں بہت ساری چیزوں میں خود کو ابھی بھی میں ایک بڑی زندگی میں فائٹ لڑتی ہوں سیلف لو کو لے کے. تو مجھے تھا میں اپنے بچوں کو سیلف لو ضرور دوں گی، اس کو زندگی میں آسانی ہوگی، اس کا دل زیادہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ جب آپ میں سیلف لو نہیں ہوتا نا، آپ لوگوں کے لیے کیے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو ڈور میٹ بھی بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر آف کورس ہارٹ بریکس ہوتے ہیں. آج ہم سیلف لو کے حوالے سے بات کریں گے. میں بھی سیلف لو کے حوالے سے سیکھوں گی کہ ہاں بھی یہ چیز کیسی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک ایک چیز مجھ میں نہیں ہو سکتی، میں اپنی اولاد کو کیا دوں گی؟ وہ جب تک مجھے خود اس کا صحیح معنی نہیں معلوم. کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، کسی نے آپ سے بدتمیزی کر دی، سارا دن آپ کا خراب، آپ کہتے یار میں تو بہت اچھی تھی، میں نے تو بہت اچھا کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. ارے بھائی آگے بڑھ جائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے مینٹل پیس کا خیال رکھیں. یہ بھی آج ہم نے سیکھنا ہے. میرے ساتھ میری بہت پیاری سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاؤں اور یہ ہمیں بہت کچھ سکھائیں سیلف لو کے حوالے سے. ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ جب ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں یہ بہت اچھا تیار بھی ہوتی ہیں، بنتی سنورتی ہیں، اور ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اندر ہے خوبصورت سا سیلف لو. ان سے ہم سیکھیں گے. جی تو میرے ساتھ موجود ہیں حنا خواجہ بیاد اور ہماری بہت ہی پیاری امبر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری لڑکیوں، میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اتنی اچھی دونوں لگ رہی ہیں. اور پتہ خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں میرے جب شو میں میرے گیسٹ بہت مزے کا اپنی پسند کا تیار ہو کر آئے ہوں، تو مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے شو کو عزت دی ہے. یہ تو ہے، ہاں انہوں نے میرے شو کو عزت دی ہے کہ یہ اچھا تیار ہو کر. ہماری میزبان اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم پہ پریشر ہوتا ہے، ہم نے بھی اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، جیسے میں نے آپ شو کے آغاز میں بات کی کہ مجھے خود ایک چیز سیکھنی ہے سیلف لو. کیونکہ میں ابھی بھی مجھے ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے نہیں آتی میں اپنے بچے کو کیا سکھاؤں گی. مجھے لگتا ہے ایک سیلف لو بچوں کو سکھانا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اس کو زندگی بڑی مدد کرتا ہے. آپ کے خیال میں سیلف لو کی کیا ڈیفینیشن ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ پتہ ہے میں وہی والی بات کہ سیلف لو اور سیلفشنس میں ایک بڑا واضح فرق ہے جو عموماً لوگوں کو بھول جاتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں، آپ ان کے لیے سیکریفائس بھی کرتے ہیں، آپ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. لیکن میرے لیے ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سیلف رسپیکٹ. اگر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے تو وہ سیلف لو کی پہلی سیڑھی ہے، آپ نے اس پہ قدم ہی نہیں رکھا. اگر آپ اپنی عزت نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. دیکھیں آپ نے کہا ہم تیار ہو کے آئے ہیں، تو اگر صبح اٹھ کر اپنے آپ کو گروم کرنا، دنیا میں باہر نکلنا، یہ بھی سیلف لو میں آتا ہے. آپ سڑ جھاڑ منہ پھاڑ باہر نکل آئیں تو آپ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یو آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو یور سیلف. وہ اپنی امپورٹنس، اپنی ویلیو، اپنی قدر کرنا
اور اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ میرے لیے کم سے کم وہ شکر گزاری کا ہے. اگر آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے, آپ کے اندر شکر گزاری ہے, تو آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک میریکولس چیز بنائی ہے, انسان بذات خود ایک میریکل ہے. بالکل. تو اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کو اکنالج نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتے, تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کریں گے؟ یہ ویسے واقعی یہاں پہ اپنی ذات سے بھی محبت کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے. جس ذات نے آپ کو بنایا ہے, آپ ایک طرح سے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میری ذات کی خوبیاں ہیں, جو فیسٹس ہیں, ان کو اپناؤ. تو سیلف لو میں بہت ساری وہ چیزیں آتی ہیں. امر جی, آپ کے خیال میں سیلف لو کیا ہے اور کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے وہ والی بات ہے کہ بالکل ہینا کی بات کو بھی میں آگے بڑھاؤں گی. دیکھو سیلف لو, بہت سے لوگ کہیں گے ہم سبھی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, لوگوں کی ڈیفینیشن یہ کیا بات ہے. کچھ لوگ کہیں گے اس کو ہم شوق میں کر لیتے ہیں, جیسے ہمیں شوق ہے تیار ہونے کا. لوگ کہیں گے یہ عادت کی بات ہے, لیکن عادت کی بات نہیں. وہ یہ بات ہے کہ سیلف لو میں بہت ساری چیزیں ہیں. سیلف لو تب آتا ہے جب آپ ذہنی طور پہ بھی آپ کلیئر ہیں. بہت ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں, آپ کا پاسٹ ہے, آپ کی کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھانا, وہ چیزیں نہیں ہیں, تو آپ سوچ کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کی اسکن بھی, آپ کے بال بھی, آپ کا گھر کا ماحول. تو بیسکلی وہ والی بات ہے کہ جب اللہ کی ڈور پکڑ لی ہے رسپیکٹ, تو وہ سوچے نا کہ, اور سب سے بڑی بات یہ میں کہوں گی صحت اور تندرستی. بالکل. کیونکہ تندرستی ہے تو ہم سب چیزیں کر سکتے ہیں. اگر تندرستی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو آئی تھنک اپنے آپ سے پیار میں بہت چیزیں آتی ہیں کہ اپنا ذہنی سکون. اب ذہنی سکون کہاں سے ملتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے نا. کسی کو کھانا پکا کر, وہ سمجھتا ہم نے کھانا پکا لیا, کچن میں کر رہے ہیں, سب کے لیے کھانا A1 کو, کہ ان کو خطاب بھی مل رہا ہے کیا اچھے کھانے بناتی ہیں یہ, لیکن وہ اپنا خیال نہیں رکھنی, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنی, اپنے ٹائم نہیں نکال سارا دن خود کو کچن میں, میں نے خواتین کو دیکھا جھونک دیتی ہیں, مطلب کہ کھانے بنا رہی, اپنا آپ نہیں دیکھنی, کچھ نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے. کیونکہ ویسے ان کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, کرنے میں لگے ہوئے کیوں؟ ہیں. کیونکہ ان کو وہ ویلیو, وہ ویلیڈیشن چاہیے دوسروں سے. جی, دوسروں سے نا, ان کو یہ نہیں اندر پتا, سے نہیں آ رہی. اور اندر ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جس میں ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہیں پرابلمز, ہر ایک کو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کس طرح سے اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, نکالنا ہے. دیکھو سیلف لو تب آئے گا جب آپ مینٹلی بھی خوش رہو. خوشی, اب خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملتی ہے انسان کو. میں یہ نہیں کہوں کہ بہت مہنگے کپڑے پہن لیے تو خوشی ملی, نہیں. ایک نیا جوڑا اگر 2000 کا بھی پہن لیں گے اس میں خوشی ہے. آؤٹنگ ہو گئی, گول گپے کھا لیے, بڑے ریسٹورنٹ, چھوٹے. تو بیسکلی سیلف رسپیکٹ, پچھلا جو آپ کے ساتھ گزرا, کوئی ایسی ہیپننگز ہوئی, اس کو لیٹ گو. پچھلی باتوں کو نکالو اپنے ذہن سے. اپنے آپ کو مسلسل کوستے نہ رہنا بھی, نہ کوسو اپنے آپ کو. اب آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بھی آپ درگزر کرو. زندگی کو آگے, جب سوچ اچھی ہوگی, آگے جستجو ہوگا آگے بڑھنے کا, تو دل چاہتا ہے, صحت اچھی ہوگی نا, تو بہت ساری چیزیں مکس اپ ہے. ہم ابھی تک سمجھتے تھے سیلف لو یہ کہ بس پہننا ہونا, بچپن سے شوق ہے تو دس از سیلف لو. بٹ نو, وہ جو ایک احساس ہے نا جی, کہ میں انسان ہوں, ہاں, اس میں بہت بڑا سیلف لو میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کر سکیں. ایگزیکٹلی. آپ انسان ہیں, آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ کی زندگی میں پچھتاوے بھی ہوں گے. آپ ان پچھتاووں کو, ان غلطیوں کو پہلے اکنالج کریں, اپنے آپ کو معاف کریں, سوار نہ کریں خود پہ. ہاں, کیونکہ آپ ایگزیکٹلی جسٹیفائی اس طرح اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے, اس وقت میری عمر چھوٹی تھی, یا مجھے ایکسپوجر نہیں تھا, یا مجھے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آپ اس سے سیکھ لیں. اگر آپ اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے تو آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے وہ چیز, اور دوسروں کے لیے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں. اگر آپ کانسٹنٹلی اس گلٹ میں رہیں گے اور پچھتاووں کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی کا کسی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, وہ آگے نہیں بڑھتی نا سائیکل. وہ لائف لوگوں کا بھی وہ سوچ نہیں ہے. دیکھو اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اٹس آل ان دا ہیڈ. جب یہ سوچ کو, ایک غلط چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے
تو وہ آپ پہ طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل, ہاں, آپ آپ کی نیگیٹیوٹی مینیفیسٹ, یہ شاید بہت پہلے سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے, بہت سو کو اب پتا چل رہا ہے, زیادہ اویئرنیس آئی تھنک اب آئی ہے. لوگ نا جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا, تو وہ مطلب یہ تو اب ہم آج 3-4 سال سے مینیفیسٹیشن کا ورڈ استعمال کریں, لیکن ایسے یہ کہ آپ وہ کہتے ہیں اللہ سے اگر آپ اچھے کی توقع کریں گے تو اللہ پاک پھر, کیونکہ اور ہوتا ہے آپ وہ لفظ سوچے نا کہ ہم نے, میں مدیہ کو بھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے دین کو نا الگ کر کے رکھ دیا, ہم نے اس کو زندگی میں اپلائی کرنا چھوڑ دیا. بالکل. اب ہم بڑا مینیفیسٹیشن سن رہے ہیں. بچپن سے ایک لفظ ہم سب نے سنا تھا, گمان. ہاں, اللہ میں بالکل, گمان. جو گمان رکھو گے وہی ہوگا الحمدللہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے, جن کو شاید ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر کے الگ کر دیا ہے. صحیح, بالکل بالکل. اچھا ہینا جی, میں جو ہماری گھر کی خواتین دیکھ رہی ہیں, جیسے آپ نے کھانے پکانے کی بات کی اور آپ نے کہا نا کہ ان کو جو ویلیڈیشن کی جو باہر سے نہیں ملتی, ہم نے اکثر ہاؤس وائف کو دیکھا کہ وہ صبح سے اٹھ کے وہ پورے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں, مسلسل کام میں لگی ہوئی ہے, وہ اس کی اپنی ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہی, وہ اس کو بننے سنورنے بیچارے اس کو بھی ٹائم نہیں مل رہا, کچھ بھی, بچے کی صحت, اس کے میاں کی صحت, اس کے سوالوں کی صحت بہت اس کے لیے مقدم ہے, ان کے ٹیسٹ, خود وہ سارا دن وہ بیچاری کچن میں کھڑی ہوئی, وہ گندی مندی, وہ کھانے بھی بنا رہی, وہ پسینے, اتنی گرمی کے موسم بھی بس لگی ہوئی ہے, لیکن اس کو وہ اپریسیشن مل ہی نہیں رہی. تو یہ بھی اتنا ہے کیونکہ وہ خود کی بھی رسپیکٹ نہیں کر رہی, پھر اس کو بھی لوگ فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو ارن ریسپیکٹ, اور اس کے لوگ کہتے ہیں میں کیا ہی کیا ہے, میں بہت کرتی کیا ہو سارا دن, یہ تو اتنا عام ہے, کرتی ہی کیا ہو سارا دن, گھر میں تو ہوتی ہو, اور بتاؤ گھر میں اس کو بیٹھنے کا وقت نہیں مل رہا ہوتا. سیلف ریسپیکٹ گین کرنا ایک بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات کی انہوں نے, کیونکہ ہم نے شاید کبھی بھی اپنی, مطلب میں اگر سوچوں جب when I was married تو میں نے اپنی ریسپیکٹ نہیں کرائی, اسٹینڈ نہیں لیا. دیکھو یہ والی بات ہوتی ہے. اب میں کہتی ہوں میں کیسے اتنا برداشت کر لیتی تھی, ٹھیک ہے کیا طریقے سے کرتا ہے انسان کمپرومائز برداشت, لیکن ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, کوئی آپ کو فور گرانٹیڈ نہ لے, وہ والی بات ہے. تو ہم میں یہ چیز نہیں آتی, لیکن اب اتنی اویئرنیس ہے, مارننگ شوز پہ اتنے اچھے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں, تو سب بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اپنی رسپیکٹ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ خواتین کہاں کا, اگر میں کسی ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کروں تو آپ مجھے بتائیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کیونکہ ہاں ہمارے ہاں جو بچیاں جب پروان چڑھائی جا رہی ہوتی تو ان کو بتا رہے تھے کہ بیٹا یو آر دا ہوم میکر, آپ ہی گھر بناؤ گے, اور آپ کی ہماری تربیت نا آپ نے اگلے گھر جا کے بتانی ہے. اس میں اگلے یہ بہت بڑا کام بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک تو سارے گھر کے کام بھی کرنے, یہ بھی آ جاتا ہے, آپ نے اپنی زبان بند رکھنی ہے, پھر بہت ساری جگہوں پہ آپ نے نا چیزیں بس اس کو درگزر کرنی ہے آپ نے. اچھا اس میں ہوتا ہے کہ چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو, ہم نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے تو انہیں کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے, اور پھر اگلے جیسے بات ہے کہ تو اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو سیلف لو, سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز ہو رہا ہے. اگر دیکھیں میں ایک بات کروں گی, شاید لوگوں نے کبھی اس چیز کو اس سے جوڑا نہیں ہے, ہمارے لیے اب علامہ اقبال صرف ایک نام رہ گئے ہیں, انفارچونیٹلی یہ ایک فیکٹ ہے. اور جو لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے بڑوں کو سمجھیں, ان کے بارے میں تحقیق کریں. جو خودی کا کانسیپٹ ہم نے ہمیشہ ان کی شاعری میں, ان کے فلسفے میں ہم نے جو سنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ خود آگہی ہے, سیلف اویئرنیس ہے, اپنے بارے میں جاننا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اپنے آپ کو جان لیتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یہ میری وہ لائن ہے, یہاں اس کے بعد میں اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہی ہوں, یہ میری وہ لائن ہے. تو وہ خود آگہی, وہ اپنے آپ کو سمجھنا, یہ بھی سمجھنا کہ مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو میری ریڈ لائن ہے. میں بالکل شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے کچھ بات ہوئی تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ اللہ جنت نصیب کرے, الہی آمین. تو مجھے ہنس کے نا مجھے کہنے لگے کہ بھائی تمہاری آنکھیں صرف بلی والی نہیں ہیں, تم کبھی کبھی وہ خونخواہ بلی بن بھی جاتی ہو. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے میں نے نوٹس کیا ہے تمہاری فیملی, سب سے پہلے تمہارا مذہب, تمہارا ملک اور تمہاری فیملی, اس پر تم کوئی کمپرومائز نہیں کرتی, تم برداشت نہیں کرتی. میں نے کہا ریلی؟ پھر میں نے سوچا کہ اس سارے سلسلے میں کیا میں نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بٹ نہیں,
क्योंकि वो ये तीनों चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। Yes. तो आपको ये डिटरमिन करना होता है कि आपके लिए क्या अहम है। ये भी सेल्फ लव में आ जाता है, सेल्फ लव में ही कि आता है आपके लिए आपका अकीदा मोहतरम है, आपके लिए आपका मुल्क मोहतरम है, हाँ। ये चीज में आ जाती है। ये चीजें जाहिर है कि अगर उन चीजों के ऊपर कोई अटैक करेगा तो मुझे तकलीफ होती है, तो मैं उस तकलीफ को क्यों बर्दाश्त करूं, मैं क्यों दरगुजर करूं। हाँ, कुछ चीजें आप फिर तय करते हैं कि नहीं ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना, जाने तो। सेल्फ लव में, खुद आगही में आपको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ आप गलती पर हैं। तो इसे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि आप गलती पर हैं, आप माफी मांग लेते हैं। हाँ, आना तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो जो होता है ना कि आप एक गिल्ट में हैं और आप रोने वाले हो जाते हैं, एक शख्स, और ये लोगों के साथ होता है कि वो अपने सेल्फ लव में वो शख्स इतना सेल्फिश हो जाता है और नार्सिसिज्म की तरफ चला जाता है कि आप कॉन्स्टेंटली उसे माफी मांग रहे होते हैं। आपकी गलती होती है या नहीं होती है, ये आप इसी वो तरह गलत जी रहे हमारी होते हैं। सोसाइटी में अगर इन्हें देखा जाए तो यूजुअली ऐसा ही है। हमारी ये बहुत सारी हमारी सोसाइटी खवातीन में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। अब देखिए, नार्सिसिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना है, और ज्यादातर मर्दों में होता है। उनकी मेल Authority, शोविनिज्म जो है ना, उस चीज को फीड करती है। और खवातीन का ये होता है कि वो हर वक्त माफिया मांग रही होती है। अच्छा, जैसे मुझे पता है पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, हमारे पास बंदों में, आप दोनों की राय जानना चाहूंगी, सेल्फ लव बंदों में ज्यादा है या खवातीन में ज्यादा है? मुझे लगता है दोनों में ही फुकदान है। जरूर। शायद हम लोग समझ नहीं पाए कि सेल्फ लव होता क्या है। क्योंकि अपने आप से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को हकीर समझें। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको उन लोगों से भी मोहब्बत करनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द हैं, हाँ, जो आपके लिए मैटर करते जो आपके लिए आपके काम के लोग हों, आपके कॉलीग्स हों, या आपके घर के अफराद हों, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हों, दोनों। आपके घर में काम करने वाले हों। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो देयर अ पार्ट ऑफ यू, आपकी वो एक्सटेंशन है ना, आपकी extension आपको उनसे भी मोहब्बत करनी है। हाँ। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ खवातीन में जो है वो सेल्फ लव है ज्यादा या बंदों में है? अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डोमिनेटिंग, कि मर्दों को शुरू से बताया गया है कि वी आर द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, एक मर्द का कॉन्सेप्ट है, मैं जाता हूँ बाहर, मैं कमाता हूँ, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, और मेरे अंदर सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगे, मेरे आगे कोई बोलेगा नहीं। हर किस्म के मर्द हैं, ठीक है ना। अब वो वाली चीज़ है कि उसकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि उसको भी उसकी अम्मी ने बताया हुआ है कि उसने अपना घर का माहौल देखा है कि माँ बाप बीवी को डांट रहे हैं, झड़क दिया छोटी छोटी बातों पे, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ कुछ लोग कहेंगे नहीं, माँ के साथ तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये सोच नहीं आती। वो वही करते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लोग वो अडेप्ट कर लेते हैं वो चीज़, जो कि गलत है, ठीक है ना। मेरे साथ अगर जुल्म होगा तो मैं कहूँगी नहीं, आगे मैं इसके साथ जुल्म नहीं करूँगी, क्योंकि तकलीफ आपने सही है, पर लोग नहीं सोचते। तो वो एक वो क्या सोचते हैं, हमने बर्दाश्त कर लिया। एग्जैक्टली, ये हाँ, ये मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद से बात को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग की लाइव कॉल्स भी शो में शामिल करेंगे और एक और अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव के हवाले से। सेल्फ लव जो हमें पता है, जो हम देखते हैं, वो कुछ और होती है, लेकिन जिसकी असल डेफिनेशन है उससे मुझे लगता है हम लोग वाकिफ़ ही नहीं है, जिससे हमें वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद आप में आ गई इस हवाले से, तो अपने बच्चों को भी ज़रूर सेल्फ लव दीजिएगा, क्योंकि आगे जितना नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, आपके बच्चों को बहुत इसमें हेल्प होगी। ठीक है, अपने बच्चों को सिखाएं कि हाँ, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, लेकिन अच्छे इंसान में आपने खुद को पीछे नहीं छोड़ देना, आपने खुद से भी अच्छा रहना है, ये बड़ा ज़रूरी है। सबा फैसल जी ने भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, उनको भी शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। सबा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये मुझे लगता है कि मतलब बड़ा सीखने की ज़रूरत है और हमें बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक सेल्फ लव क्या है और आप इसको अपने लिए कितना मुकद्दम जानती हैं? देखिए, सवाल तो बड़ा सीरियस है, लेकिन छोटा सा फ़नी जवाब मैं दूंगी कि मैंने आपको बाद में ज्वाइन किया, मैं मेकअप रूम में थी और मेरे बाल बन रहे थे
اور میں نے دیکھ لیا ہنا ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, میری یہ سائڈ اچھی آتی ہے, میں ادھر بیٹھوں گی, میرے بال ادھر کے صحیح بناؤ. تو اس کو کہتے ہیں سیلف لو, کہ مجھے کیسے اچھا دکھنا ہے. اس کا مطلب ان دونوں کا مجھے تو بالکل نہیں اپنے آپ سے سیلف لو, میں تو سوچتی ہی نہیں تو میں نے کہاں سوچا, میں آئی جہاں بیٹھی تو بس دیکھ لیں آپ سب سے زیادہ مجھے میں تو ڈرامہ ہوتا ہے نا واقعی شیشہ میں مجھے شیشہ میں دیکھا ہوا پہ, میں کہا چھوڑو. اور کبھی میں دیکھتی میں کہ میرے بال یہاں سے پجی کوئی نہیں دیکھتی نہیں. نہیں امبر, بہت بری بات ہے. میں ایک ایک نوک پلک سوار کے آتی ہوں, چاہے میں رو رہی ہوں چاہے میں ہنس رہی ہوں. اچھا مجھے کہتے ہیں آپ کو اپنی کون سی سائڈ پسند ہے, میں کہتی ہوں مجھے دونوں بری لگتی ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک مذاق کی بات. بٹ آئی لو اٹ, کتنی اچھی آپ نے مزے کی ایگزامپل دی, لوگ سمجھ پائیں گے. لیکن دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور اللہ کے نزدیک انسان جو ہے وہ سب سے افضل مخلوق ہے. جب اللہ نے یہ سوچ کر دنیا تخلیق کی تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نفی کرنے والے. جب مرد سمجھتے ہیں کہ وہ نان نفقے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی گھر میں ایک اجارہ داری ہونی چاہیے یا انہیں گھر میں ایک منفرد مقام ملنا چاہیے, تو عورت جو اس مرد کے بچے پیدا کرتی ہے, پھر ان کو پروان چڑھاتی ہے, پھر انہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے اور دنیا کو ایک بہترین انسان دیتی ہے, تو اس کی اہمیت کسی بھی طرح کم نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ خواتین جیسے ہم لوگ ہیں, جیسے آپ ہیں, جو گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی لے کر چل رہی ہے اور مرد کے نان نفقے میں بھی اس کی ہیلپ کر رہی ہے, تو ہم تو بہت افضل ہیں بھائی. ہمارا اسپیشلی شوبز کے لوگوں کی اگر میں بات کروں تو جب تک ہمارا چہرہ مہرا ہے نا, تو یہ سب عوام بھی پسند کرے گی, پروڈیوسرز بھی پسند کریں گے, مدیہ بھی کہیں گی ہمارے شو میں آئیں, باقی لوگ بھی کہیں گے. اور جب تک ہمارے چہرے پر رونق نہیں ہوگی, ہماری آنکھیں روشن نہیں ہوں گی, ہمارا رنگ نہیں چمکتا ہوا ہوگا, کوئی بھی لفٹ نہیں کروائے گا. اس لیے سب سے پہلے تو آپ خود سے محبت کریں, خود کو پیار کرنے. اب اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں. اب اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے, جیسے جہاز میں کہتے ہیں نا, پہلے آکسیجن ماسک خود لگائیں, پھر اپنے بچے کو لگائیں, چاہے وہ 6 ماہ کا ہے. تو آپ پہلے خود کا تو خیال کریں. جب تک آپ خود کو بہترین نہیں رکھیں گے, آپ معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں تو اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, اور میرے خیال میں جو گھر بیٹھی خواتین اس وقت ہمارا شو دیکھ رہی ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, جو صبح سے شروع ہوتی ہیں کاموں میں اور رات شوہر کے آنے کے بعد, بچوں کو سلانے کے بعد بھی دودھ کا ایک گلاس پیے بغیر سو جاتی ہیں, ان کے لیے بہت زبردست میسیج ہے کہ صبح اٹھیں اور وہ نہار منہ پانی پئیں, لیمو والا پانی پئیں, پھر ایک ملٹی وائٹامن جو ہے نا وہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر یا کچن کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہونی چاہیے, جسے آپ کام شروع کرنے سے پہلے خود بھی کھائیں. میں اپنی میڈس کو بھی دیتی ہوں کہ وہ بھی کھائیں گی تو ان میں انرجی رہے گی, تو وہ کھائیں, اس کے بعد کام شروع کریں, دوپہر میں ریسٹ کریں. اور بچے جو ہے نا, بچوں کو خود بھی کام کرنا سکھائیں, اپنی ذمہ داریاں ڈالیں. اور آپ کی نیند بھی میٹر کرتی ہے. نیند بہت میٹر کرتی ہے. باوجود ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ خواتین کو بولے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن, وہ بیچاری صبح سے لگی ہوئی مشین کی طرح رات تک جو ہے. نہیں مدیہ, آپ دیکھیں, میں نے ایک بڑا, میں تو سوشل میڈیا کو ضرور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں اور اس میں سے اچھی چیزیں پک کرتی ہوں, کہ ایک مرد صبح شوہر کہہ کے چلا گیا تم کرتی کیا ہو سارا دن. اس نے کہا اچھا آج میری طبیعت سے, وہ سارا دن لیٹی رہی. اب وہ رات میں جب آیا, اس نے دروازہ کھولا, اس کے ساتھ کوئی ٹکرایا, بچے کا کھلونا کوریڈور میں سے گزرا, ادھر یہ, کچن میں اس نے جھانکا تو رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ پھر کمرے میں آیا, اس نے کہا, اور وہ بیٹھی ہوئی محترمہ کھا رہی ہیں کچھ اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں مزے سے. تو اس نے کہا یہ کیا ہے آج, یہ گھر میں کیا ہے. اس نے کہا تم نے کہا تھا کچھ نہیں کرتی. میں نے کہا آج دیکھتی ہوں میں کچھ نہ کر کے کیا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا ظاہری طور پہ جو خیال رکھنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ
सेहतमंद हो और आपका जहन भी सेहतमंद हो। हाँ, जैसे मैंने ज़हनी कहा। तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अपने आप से आप मोहब्बत करते हैं ना, तो आप ये देखें कि आपके लिए क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको सुकून देती हैं, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं। अब अगर जैसे उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तैयार होना या उस तरह से मुझे रहना मेरे लिए एक खुशी का बायस है, उसी तरह से देयर आर पीपल जिनको मैं इतनी ख़वातीन को जानती हूँ जो पहले पेंटिंग करती थी, म्यूजिक सुनती थी, किताबें पढ़ती थी, अब उन्होंने हर वो चीज़ भुला छोड़ दी। दिया होगा। वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी हैं। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। जैसे आप इवन इबादत में सुकून है, कई लोगों को बहुत सुकून मिलता है, तो अपने लिए वो वक्त भी निकालें। अगर आपको किताब पढ़ने का दिल चाह रहा है तो दिन का कोई एक टाइम अपने लिए निकाल अपने लिए लें। मुख्तस करें भाई। कोई गुनाह नहीं है अपने लिए वक्त निकालना, बिल्कुल। क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें भी तो कर रहे हैं। सो अपनी मेंटल वेल बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें करें जिनसे आपको सुकून मिलता है, जिनसे आपको खुशी हासिल होती है, जिनसे आपको लगता है कि आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ मसला ये कि जब हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो जो लड़की है वो बस उसकी अपनी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है और वो किसी की बीवी बन जाती है। वो खुद भी उसकी अपनी पर्सनालिटी है। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी करेगी वो अगले को खुश करने के लिए करेगी, उसको देखते हुए, उसके मिजाज को देखे कि नहीं उसकी अपनी भी एक पर्सनालिटी है। जैसे आपने कहा उसकी भी एक पसंद नापसंद है, वो भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करना चाहती है, उसके भी कुछ ख्वाब हैं, तो एटलीस्ट उसको उसके ख्वाब जो है वो चेज़ करने दें, उसको ख्वाब पूरे करने दें। हमारे यहाँ क्योंकि हम जो रिलेशनशिप के वाले से बात कर रहे थे और बहुत सी लड़कियाँ ये गलती करती हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी हम हेल्प करें। मतलब हमारी बहुत सी लड़कियों में देख रही हैं कि हम अपने रिश्तों में जाके ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि जिससे सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर सेल्फ लव तो वो पंजाबी में कहते हैं ना ओ पुंजे पे है, पता नहीं किधर गया है वो। तो आपको वैसे क्या लगता है कि क्या गलतियाँ, और आपने वैसे कोई ऐसी गलतियाँ की? मैं तो बहुत गलती की, मैं अब जाके कहती हूँ शायद मुझ में अब जाकर समझ आई। शायद वो मेरी एक नेचर थी, शुरू से यूँ मैं हूँ, मतलब कि किसी के लिए बात करना, बचपन से बोलना, ये नहीं कि मैं कोई डर खौफ वाला, लेकिन मैंने हमेशा पता नहीं ये होता है कि दूसरे को बुरा ना लगे। मेरे अंदर ये है कि मैं ना झड़क के बात कर सकती हूँ, चाहे मुझे नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी मैं इत्मीनान से बात करूँगी कि मैं कर नहीं सकती। मेरी जब शादी हुई थी तो ऑब्वियसली यंग एज में इंसान, हालांकि आजकल समझदार थी मैं, ठीक है, 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। लड़कियाँ होती हैं ना समझ, लेकिन मेरे अंदर काफ़ी समझ थी। अब ये भी एक जो खुश नसीबी होती है कि आपको शौहर बहुत अच्छा मिले, ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी वहाँ से, मैं समझती हूँ औरत की ज़िंदगी शादी के बाद लड़की की स्टार्ट होती है। नहीं है प्रॉब्लम्स तो बस फिर वहाँ से चीज़ें जर्नी अलग रुख ले लेती है। मेरे अंदर ये था कि मेरे सास ससुर सब बहुत अच्छे थे, मेरी नंद से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन प्रॉब्लम थी जैसे शौहर से मैं सारी बातें सुनती भी थी, करती भी थी, यहाँ तक कि बिल्कुल कभी मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं कराई। जो मैं बात कह रही, मैंने अपनी रिस्पेक्ट कभी नहीं कराई, लिटरली मैं बता रही हूँ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। मेरी माँ ने जब देखा कि वो मेरी नेचर जानते थे और चीज़ें वजूहात में ओवरऑल वो बता रही हूँ, मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम क्या लड़की हो, कोई मुझे देख के नहीं कहेगा कि अंबर ऐसी होगी जो एक वो है, कि तुम हमें लगता है जो तैयार होते हैं, लगता है लोजिन की जिंदगी नहीं, में तो यार जैसे मैं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये इसका तो तेज तरार होगी, नहीं। मैं लिटरली यकीन करो कि मेरी माँ ने कहा बेटा गलत बात पे थोड़ा बताओ, समझाओ, ठीक है ना। बोल बोल के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। यूँ मैं कॉन्फिडेंस था, लेकिन यहाँ के नहीं बुरी बात है, नहीं बोलना, मेरे अंदर वो था। ये भी नहीं मेरे माँ बाप हम लोग के बेटा यूँ करना है, कभी नहीं आज ये चीज़ें, नेचुरली। सास ससुर बहुत अच्छी थी, मैं कहती थी कोई बात नहीं, मेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं, मेरी नंद इतनी अच्छी है। जहाँ बोलना होता था मैं उनके लिए बोलती थी, अपनी नंद के लिए अपनी मियाँ से लड़ती थी। मैं कहा नहीं, अपने ससुर से बात करती थी। अपने लिए कभी लड़ी वैसे? अपने लिए कभी भी नहीं। मैं उनसे कहती थी ये देखेंगे तू मेरा बेटा है, बस। बेसिकली उनको किसी ने टोका नहीं। बचपन से ना आपके बास माँ बाप ना खुद सह लेते हैं, बच्चों ने जो कह दिया दे डोंट टेल देम बेटा ये गलत बात है, वो बस कहते हैं जो स्पॉइल ब्रैट्स हो जाते हैं, जिससे कहते हैं आपको जो मर्जी है, वो इंसान को आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर मैं बोलती तो इंसान में सुधार आता। मैंने नहीं बोला,
जब बोलना किया तो फिर वाकई चीज़ें चेंज हुई, बोल बोल के तरीके से। तो वो चीज़ें मैंने रिस्पेक्ट नहीं कराई अपनी। गाली भी सुन ली, फलां भी सुन लिया, शुरू में एक दो ये था कि एक आध दफ़ा थप खा लिया, लात भी खा ली। एक मैं बात कह रही हूँ ऐसी, लेकिन उसमें मुझे याद है मेरे बाप ने तब भी मुझे बोला था, देख तू मेरी बेटी है ना, अगर मार खाएगी भले तो 2 घूसे में, आज भी उनके अल्फाज अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन, इलाही आमीन। बिला वजह की बात पे तुम्हें कोई मारे ये बर्दाश्त, हमने आज तक नहीं मारा, तुम्हें दूसरा इंसान कैसे हाथ उठाए, भले 2 घूसे खा लेना, लेकिन अपनी राइट। तो ये चीज़ें हैं, देखो मतलब वाली ऐसे हम नहीं है कि बदतमीजी करें या हम वो नहीं, मगर एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अब जाके मेरे हाँ अब अगर हो तो मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत चीजें बर्दाश्त की ये लोगों आपने की। सीखा वैसे कितने अरसे बाद, बहुत कितने अरसे। सालों बाद आपने बात सीखी वैसे? मैं तो अब जाकर, अब जाहिर सी बात है इतने साल हो गए, आई थिंक कोई 20-25 साल के बाद जाके अक्ल आई कि यार अपने लिए भी तो कुछ बोलो। राइट नाउ अब जैसे अब कुछ गलत है, कोई मुझे झड़क देगा, बदतमीज़ी, मैं एक रिस्पेक्ट में नहीं बोलूँगी, लेकिन एक लिमिट होगी, वहाँ मैं बोलूँगी। अच्छा, बहुत से लोगों पे बाउंड्री सेट कर देना भी आपकी एक तरह से सेल्फ लव में आ जाते। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नुज़रत है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिहा, कैसी हैं, ठीक है? नुज़रत बोल रही हूँ, मिसिस हनीफ। मेरी पिछली दफा भी बात हुई थी और आपके ये तीनों जो गेस्ट बैठे हुए हैं ना, और मैंने इसे बात हुई थी और क्या नाम है जो भी बोल रही थी, तो मैंने बताया था कि मैं लिली की मेरी फ्रेंड है चाइनीज, और मैं उनका पार्लर है रेस्टोरेंट में, मैं उधर जाती हूँ। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो है ना फैसल जो बैठी हुई है, इन्होंने इतनी प्यारी बात की है, तो मुझे भी लोग पता है, यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्टाइल रखा हुआ है, तो मुझे सब जर्मन लेडी कहते हैं, और मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मेरी 3 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आजकल मैं टाइम दे रही हूँ। और ये जो मुस्कुरा रही है ना, ये तो मेरी फेवरेट है। और हिना ख्वाजा का भी बड़ा, लेकिन जो है ना अपनी ये जो फैसल बैठी हुई है, फिर आप मेरे मियाँ को ही हाईलाइट कर रही है ना मुझे। नहीं जो फैशन हाँ चलो उनको हाईलाइट कर लो, लेकिन जो आपने बात की है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैंने अपने आप को देखा कि मेरा कौन सा पोज अच्छा लगता है। और जो हिना ने पहने हुए ना ड्रेस, मैंने सेम वही पहना हुआ है। मैंने अपनी बार ट्राई करके मतलब स्टार्ट करके अपने मियाँ ये मैं क्या रहा अपने, अब जो है ना मैं सुबह का टीवी देखूंगी, बिल्कुल मैंने वही ड्रेस पहना हुआ है जो हिना जी ने पहना हुआ है। लेकिन ये बात है कि मैं आपने जो ये टॉपिक है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं सुनती सकती हूँ, करती दिल की हूँ। और जो है ना मैं जो है ना जो बात है ना, एक बात करती हूँ कि मैं मुनाफत नहीं करती, मैं जो उनकी कमी पेशी है ना उनके मुंह के आगे करती हूँ। और मुझे ये जो ना तीनों लेडी बैठी हुई है ना, मैं उनसे मैं भी एज में मतलब कि बड़ी हूँ, लेकिन मैं इतनी एक्टिव हूँ, और मैं जो हूँ ना जुल्फी की कुल्फी की तरह हूँ रोजों का बाद, इतना मैंने अपने आप को स्मार्ट रखा हुआ है। तो ये बात है कि ये जो नहीं है क्या नाम है, मतलब सब अच्छी हैं, लेकिन आपने मुझे कहा था, मैंने आपको मदिया कहा था, नहीं मैंने सॉरी मैंने आपको चिद्रा कहा था, इसलिए कि मैं आज टीवी पर भी बात करती थी चिद्रा के साथ, और मेरे साथ जो रह रहे हैं ना वो गैरिजन स्टेट के, उनकी मिसिस का नाम भी चिद्रा है, तो मेरे मुंह में से चिद्रा निकला तो आप कहते नहीं हंस रही थी, मेरा नाम मदिया है। और मुझे जो मतलब आपने आज से मेरा नाम चिद्रा पहले आपकी सबसे आपको पहली याद आया तो कह रही थी कि मैं पिंडी आऊंगी, मैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको पीसी में इनवाइट करूंगी, आप आएंगे और वेलकम। अच्छा वैसे मुझे बताएं आपकी एज क्या है? अच्छा मेरे ऐसे नहीं, मैं पंजाबी भी बोलनी है, मैं पठान की हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, आर्मी के मतलब, लेकिन मुझे मैं पता क्या किया, दिल होना चाहिए जवान के उम्र की रखी है। बिल्कुल सही बात, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आपने बताया था, तो आपने बताया था अब इतनी जिंदा दिल है, मैं आपकी कॉल मुझे याद आ रही है, और फिर हमने बड़ा सीखा था कि एक बात बताऊँ, एक बैड न्यूज थी कि कल जी बोले। जी बताइए। हाँ जी, हालांकि देखिए मैं आपके साथ कैसे बोल रही हूँ, और आपको पता होगा कि एक बैड न्यूज कि मेरे जो है ना सच्ची सीता की कल डेथ हो गई है, और मैं आज दूसरा दिन, आज मैं अपने घर बैठ के टोन में हूँ, और आपको पता है कि जो ये अपनी जो बात होती है ना,
तो वो मतलब जिस तरह भी है, लेकिन वो बातें जो ना पर्सनल जो है ना, और हिना जी और दूसरी क्या नाम है, मिर्जा जी बहुत मैं शुक्रिया आपका, आप टेलीविजन देख रही हैं, आप Energy बहुत कितनी energy अच्छी है। है। और देखो, उन्हें तारीफ और कितना आप लोग अच्छा लग रहा था। और आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगे कि अगर मैं देखूं कि जब सुबह हमारा शो आता है तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ, कहते हैं हम आराम से, हम भी हल्के से तैयार होकर बैठ जाते हैं और हमें लगता है अभी तो हमारे शो में बैठे हुए मुझे इतना अच्छा साउंड कर मैं रहे हैं आपको यार। बात बताऊं मदिया, मुझे इससे याद आया कि कोविड के ज़माने में क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे होते थे, तो मैंने अपने मियाँ से एक चीज़ें सीखी थी। है ना, आप जिंदगी में सीखते चले जाते हैं। बिल्कुल। वो सुबह उठते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एन अर्ली राइजर। सुबह उठ के जो उनकी नॉर्मल रूटीन थी, नहा धो के, तैयार होके, कपड़े बदल के, परफ्यूम लगा के, अब मैं नीचे स्टडी में जा रहा हूँ, अब मैं जाके अपना काम करने लगा हूँ। तो आई यूज्ड टू लाफ एट हिम, मैं कहती थी आप खुशबू लगा के कहाँ जा रहे हैं, मतलब वेयर आर यू गोइंग टू गो? He said it's for me. हाँ भाई, मुझे अगर ऑनलाइन भी किसी से बात करनी है, कुछ है, तो मैं अपने नाइट में बैठ के तो नहीं करूंगा। और इसे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि ऊपर शर्ट पहन ली और टाई लगा ली और नीचे आपने शॉर्ट्स पहनी। He said नहीं, ये आपके अपने लिए है। Yes. आप ये नहीं कि आपने कोई बहुत महंगी चीज पहनी है, आप नहा धो के तैयार होके वेल ग्रूम्ड। और मुझे उस चीज से ख्याल आया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमने बचपन से यही सीखा है ना कि बेटा नमाज पढ़ने लगो तो नहा कर, खुशबू लगाकर। हाँ। मेरी नानी क्या करती थी, आप अल्लाह ताला के सामने, आप सोचें कि आपने किसी बादशाह के दरबार में जाना होगा तो आप ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल आप तैयार होके जाएंगे। तो आप इतने बड़े शहंशाह के दरबार में जाते हैं, शहंशाहों का शहंशाह, तो आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो ये भी जो चीजें ना, अपनी प्रेजेंटेशन, बहुत मैटर अपनी करती है। जिस्मानी बहुत जरूरी है। सेहत, अपनी जहनी सेहत, अपने दिल का सुकून, अपने साथ नरम रवैया रखें। बी काइंड टू योरसेल्फ। अच्छा, जैसे आपने भी अंबर जी की हमने बात भी सुनी, और ऐसी बहुत सारी मैंने देखा है कि लड़कियां, क्योंकि हमें देखें वही बात है ना, हमारी लड़कियों की परवरिश ऐसी की जाती है कि हमें एक तरह से सब्र करने का कहा जाता है, हमें मन मारना जो है ना वो बचपन से सिखाया जाता है। वो कहते हैं ना भाइयों को, लड़कों को हमारे कल्चर में, मैं अपने घर की बात नहीं करी लेकिन यूजुअली हमारे कल्चर में है कि भाइयों को ज़्यादा अच्छा खाना दिया जाएगा, उसको बोटी का पीस भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उसका स्कूल भी अच्छा होगा, उसकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, उसकी कॉलेज भी अच्छा होगा, उसके लिए जो करियर की जो आप चीज़ें सोचोगे वो भी डिफरेंट हटके होगी। बेटी की आप सोचते इसकी तो शादी कर देंगे, ये तो पराया हाँ, exact concept. हमारे बच्ची को पैदा ही मतलब परवाने से चढ़ाया गया कि उसको, उसके लिए अपना आप जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसी वजह से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियों में जो, जिसकी बात आपने की है और जिस आपसे गुजरी हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे मराहिल से गुजरती हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने अपनी कहाँ पे अब एक बाउंड्री सेट करनी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके मेरा हिना जी से भी यही सवाल है और मेरा सबा जी से भी यही सवाल है कि हम रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ लव कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें सेल्फ लव के हवाले से। अच्छा, सेल्फ लव में मैं सेल्फ केयर की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन अभी छोटी छोटी गलतियां जो हम लड़कियां करती हैं, ज़रा मैं उस हवाले से भी क्विकली ज़रा पूछूं। फिर मुझे अभी आपकी जो डिलीवरी के बाद जो आप लोग गलतियां करते हैं, वो बहुत सारी हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई हुई, जो कि सिंगल हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, वो अपने लिए क्या जो है, मुझे लगता है जो गलतियाँ कुछ करती हैं जिनको नहीं पता कि भाई ये भी सेल्फ लव से दूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे। इनकी ब्यूटी टिप्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी खूबसूरत है, ये अपना ख्याल कैसे करती है ताकि हम भी इन जैसे लिशकते पशकते हसीन हो, खूबसूरत हो जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, लड़कियां क्या रिलेशनशिप में रहते हुए गलतियां करती हैं? देखिए, रिलेशनशिप्स हर तरह के होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को निगेट कर दिया है, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी है अपने माँ बाप के पीछे, अपने बहन भाइयों के पीछे। कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी फैमिली को निगेट कर देती हैं अपने काम के पीछे, ठीक है। सो उस सारे सिलसिले में आप भी कहीं पीछे रह जाते हैं। हिना जी, आपका कैसा था, अपना बताएं, आपने खुद कैसे इस चीज़ का ख्याल रखा, सेल्फ लव का? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे वही अम्मी मेरी ज़िंदगी का, आई थिंक मेरी, कहते हैं ना वो एक एक बूंद में मौजूद है। मुझे बचपन से याद है, अम्मी एक बात कहा करती थी कि बेटा तुम ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि जो आप बाहर से हैं, ज़ाहिरी तौर पे हैं, वो आज है कल नहीं रहेगा। आप कुछ भी कर लें, एक साइकिल है लाइफ का, वो चलता है, और आप इसमें भी शुक्रगुजारी रखें।
آپ کو ہر عمر میں اپنی ایج کو اون کر کے لک یور بیسٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک سسٹم رکھا ہے, اس کو فائٹ مت کرو, اس کے ساتھ اچھی طرح جینا سیکھو, لیکن اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو جو آپ کو خوبصورت بنائیں گی. اور اس میں بہت ایک بڑی ٹپ تھی, کبھی اتنے میٹھے نہ ہو کہ کوئی تمہیں نگل جائے, اور کبھی اتنے کڑوے نہ ہو کہ کوئی تمہیں تھوک دے. تو یہ جو فائن لائن ہے نا, اس میں آپ ہی کی سیلف رسپیکٹ اور آپ ہی کا سیلف لو ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اتنے میٹھے ہیں کہ کوئی آپ کو گھول کر پی جائے گا اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, یا آپ اپنے چکر میں اتنی آپ کی انا بن جاتی ہے کہ آپ کو اپنے آگے کوئی نظر ہی نہیں آتا, تو وہ بھی آپ کو دنیا میں پھر پیپل ول شن یو. اینڈ دین ہاں پھر دین اٹس ا کرس. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوین رضوان لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوین کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. آپ لوگوں کا بہت اچھا ٹاپک ہے, گیسٹ بھی آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, ان کی باتیں سنتی ہوں. کل والا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. دیکھیں آپ لوگ سیلف رسپیکٹ کی بات کریں, میں بھی ایجوکیٹڈ ہوں, پوسٹ گریجویٹ ہوں, سن رہی ہوں سب کچھ اور پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کی زندگی میں. لیکن میں ریگارڈنگ سسرال بات کرتی ہوں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا, تو پھر آپ اگر سیلف رسپیکٹ کو پریکٹس کریں تو سسرال والوں کی, ہسبینڈ کی, ساس کی اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اپنے کسی کام سے آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ اپنے آپ کو آگے رکھ لیں تو کہتے ہیں جی یہ تو بہت ٹچی ہے, یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے, اس کی تو اکڑ نکالنی پڑے گی. اور اسی اکڑ نکالتے نکالتے بہت ساری لڑکیوں کا گھر خراب ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ جو سیلف رسپیکٹ اگر آپ نے سیلف رسپیکٹ پریکٹس کرنی ہے نا, تو پھر تو آپ کو سیپریٹ لیونگ رکھنی چاہیے نمبر 1. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 4-5 بہن بھائی ہیں اور سسرال میں 4-5 لوگ ہیں, تو اگر ایک ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی, جیسے میں بہت کانفیڈنٹ تھی, اپنی پریکٹس کرتی تھی, اپنی اتھارٹی کرتی تھی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یا مجھے وہاں جانا ہے تو مجھے جانا ہے, تو پورا خاندان خلاف, یہ تو جی بہت اکڑ والی ہے, یہ تو ہماری باقی بہوؤں کو بھی خراب کر دے گی. اور جو بہت دبو ٹائپ کی تھی وہ آسمان پہ بٹھائی ہوئی تھی, یہ بڑی, وہ خوش تھی یا نہیں. لیکن ایک سسرال میں بھی تو ایک ہیرارکی ہوتی ہے نا, یہ والی بہو ہماری بہت اچھی ہے, یہ والی بہو ہماری صحیح نہیں ہے, یہ تو بہت اپنی مرضی کرتی ہے. تو اس کے اوپر کمنٹ کریں آپ لوگ کہ اس کو کیسے چیلنج کرے بندہ. اس ٹاپک پہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, میں بھی سینئر ہی ہو چکی ہوں اب تو, لیکن یہ کہ اس چیز پہ کمنٹ کریں کہ لڑکیاں پھر کیسے لے کے چلیں اس چیز کو. میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے بالکل صحیح بات کی بیوی, کہ وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ مقابلے کا ہوتا ہے, کمپیریزن ہو جاتا ہے, اسپیشلی جوائنٹ فیملیز میں. ٹھیک ہے, یہ ایسی ہے تو وہ ویسی ہے, وہ مقابلہ آپ اپنے ساتھ بھی کسی کا کریں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو ذلیل کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ڈیفائن یہی کرنا ہوتا ہے, جو سیلف اویئرنیس یا سیلف لو ہے وہ یہ ڈیفائن کرنا ہے کیا چیز اہم ہے. جو چیز واقعی اہم ہے اور آپ کو میٹر کرتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں آگے وہ چیزوں کو آپ کے لیے خراب کرے گی اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بیٹل گراؤنڈ نہیں بناتے, مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ نے, وہ کہتے ہیں نا غربا کشتن روز اول, اگر آپ نے پہلے دن اس چیز پر سٹینڈ نہیں لیا تو آپ ساری زندگی لوگوں کو مناتے ہوئے ہی رہ جائیں گے. بڑے سٹل میں نا آپ اپنے ایک باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں بڑے آرام سے, تاکہ اس کو بتائیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے یہ میری, اور اس میں لڑائی نہیں لڑنی ہوتی آپ نے, خاموشی سے. ہاں آپ کئی دفعہ خاموشی سے کر جاتے ہیں, کئی دفعہ ان کو کنونس کر دیتے ہیں. تہذیب اور تمیز کے دائرے میں اگر آپ کبھی کبھار, میں یہ کہوں گی نا ہر بات پہ نہیں, کبھی کبھار آپ کسی چیز پر سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ دوسروں کو کنونس کرتے ہیں طریقے سے, تو زندگی ایک چیلنج ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ان بی بی کا مسئلہ ہے نا, یہ تو ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک رہے گا, کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, اور اس میں خود ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور ایک سائیڈ کی تو میں تو کبھی سن ہی نہیں سکتی. میں کہتی ہوں یہ 2 وے آپ کی ڈسکشن ہے, آپ ادھر سے بھی دیکھیں, آپ ادھر بھی پوچھیں. اگر آپ میں اتنی کریج ہے کہ آپ ایک پروگرام میں اس طرح کی ڈسکشن کر رہی ہیں, تو پھر آپ میں ہر طرح کی کریج ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, پھر آپ شکایت نہیں کر سکتی. ایک بات, کیونکہ
करेज की बात है, आप सही को सही और गलत को गलत अगर कह सकती हैं ना, तो आप उधर भी कहती होंगी। और अगर आपकी नहीं मानी सुनी जाती तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में आप में भी कमी होगी। खैर, ये तो आपका जवाब हो गया, और इस टॉपिक पर मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं वो आपने जो पहले सवाल किया था, मेरे दिमाग से निकल जाती है बातें, फौरन पूछ लिया, वो ब्रेक आ जाती ना। अच्छा, मैं कभी भी अपने लिए, एक होता है ना नमाज में, सब्र की दुआ नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर आप सब्र की दुआ करेंगे ना तो आपको उतना ही सब्र करना पड़ेगा जिंदगी में, फिर आपको आजमाया जाएगा, फिर सब्र आपको के साथ। आजमाया जाएगा। तो मैं अपने लिए सब्र की दुआ नहीं करती। मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मुसब्बबुल अस्बाब है, बेशक। सबके मसाइल हल करने वाला तू है। तू बस वहां तक ले जाना है अपने बंदे को जहां तक उसका सब्र। डीप बात की, मैं तो वही बात सोची कि हम सब्र मांगते हैं। हम सब्र मांगते हैं तो आप सब्र नहीं मांग सकते, क्योंकि उसकी तो इंतहा ही नहीं है। जी जी, मैं आपको बताऊं, मैं क्या पहली मानती बात तो ये। जी जी। और दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन की आप बात कर रही हैं, उसमें आप सेल्फ लव की बात कर रही हैं, तो औरत के ज़िंदगी के 2 मराहिल हैं। एक उसकी खुद से मोहब्बत, और एक उसके बाद उसकी अपने बच्चों से मोहब्बत। बीच में कोई नहीं आता, और जब बच्चे आ जाते हैं फिर कोई भी नहीं आता। और औरत अपनी पहली मोहब्बत को दूसरी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देती है। ठीक है ना? अब देखें, ये सारी चीज़ें हम जैसे लोग, हम जैसे ज़हन लिखते भी हैं, लगाते भी हैं, और आप उनमें से वो चीज़ पिक करते हैं जो आपके दिल को लगती है। तो मेरे ये बात बड़ी दिल को लगती है। हमारी यहाँ की ख़वातीन भी, स्पेशली एशिया की ख़वातीन, मुझे तो लगता है कि आप यूरोप और अमेरिका देखें, वहाँ भी ये होगा, लेकिन एक एज तक, बच्चों की एक एज तक। यहाँ तो मेरी अम्मी ने कहा, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी जब सादिया पैदा हुई, तो मैं कहती थी ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई। तो मम्मी ने कहा कि बेटा सबसे आसान ज़िंदगी है ये, इसके बाद मुश्किल होगी। तो मैं कहती क्या बात कर रही है, नींद पूरी नहीं होती, इससे बड़ी क्या मुश्किल होगी। लेकिन ज़िंदगी ने बताया, जब बच्चे स्कूल में गए और तरह के मसले और प्रॉब्लम, तब लगता था वो बहुत आसान काम था। बच्चों की शादियां हो गई और मसले मसाइल, लगता था बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के मसले छोटे थे। बच्चों के जब बच्चे हो गए और मसले मसाइल, तो ज़िंदगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी है तो हम इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके बच्चे हैं वो इन मसाइल को फेस करेंगे और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आपको हर चीज़ के लिए सामने एक मसला भी तो होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा अल्लाह ताला की, ना देखी भी आजमाया है, तो वो आपको बस आजमाइश की मैं तो अल्लाह ताला की आजमाइश के सदके जाती हूँ। Exactly. कि वो हर मामले में आपको एक कदम आगे रखता है और फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता Exactly. है। मैं वक्त के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। मैं ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल मैं वही ऐसी- कह रही हूँ ना। शादी में शुरू में हाँ। अच्छा, मैं जो कॉलर थी, इनका बहुत वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि जब ये, मैं आई थिंक कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर सास और बहुएं भी हैं, सब है, आप साबित करें, आप कोई भी बात करें, आपकी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। देखो, लहजा, जबान बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बात अगर मैं प्यार से पूछ सकती हूँ अपनी सास से कि उनको एक दर्जा दे के, नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं खाना मैं बना दूंगी, मैं ये काम कर लूँगी, तो मुझे शौक है, ठीक है। मैंने अपनी सास को हमेशा मम्मी टू बोला है। मुझे प्यार मिला, मेरी नेचर ऐसी थी, तो हमेशा उनसे बिल्कुल था कि एक दफ़ा कोई चीज़ मुझे उनकी बुरी लगी थी, एक दफ़ा ज़्यादा, ठीक है, मैंने दिल में नहीं रखा। मैंने कहा मुझे ये बात बुरी लगी, आपने मुझसे नहीं पूछा, हाय मेरा बेटा, मैं सॉरी। देखो, कम्युनिकेशन इज वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और कंपेयर। अब आप बताएं कि भी देखो, लोग हमें फीड कर रहे होते हैं, अगर कल को मुझे कोई पीछे से फीड करेगा, ये तो इंसान के दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है, एक्स एंड वाई जेड, जो भी आपकी फैमिली में। लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए, हम खुद भी सोचें, मैं क्यों मना करूँगा, उसको शौक है, पढ़ी लिखी है, उसे बाहर जाना है। हाँ, अगर पुअर नहीं है, काम कर रही है, मेरे का भी ख्याल रख रही है बच्चों का, तो जाओ बेटा, ये तरीका है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका जो था ना कि मैं वो मना करती हैं लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ, अब वो अंदर के क्या हालात हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप बात कर सकते हैं अपनी सास से। सो बेसिकली
कम्युनिकेट, जो बात बुरी लगे बोलो, मुझे आपकी बात बुरी लगी तो आगे वाला हो सकता है, हम भी इंसान है, मिस्टेक कर सकते हैं ना, तो क्लियर इट। अंबर मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं कई चीज़ों के ऊपर मेरी बड़ी क्लियरली डिफाइंड लाइंस थी। सवा जी कह रही थी ना मैंने सब्र नहीं मांगती अपने लिए, मैंने कभी नहीं मांगा, और मैं आज कह रही हूँ मैं कभी अपने लिए सब्र नहीं मांगा, मैंने हमेशा अपने लिए खैर मांगी है। ये अल्फाज होते हैं मेरे, खैर और शुक्र, क्योंकि शुक्र मुझे बहुत सारी चीज़ों में से निकाल लेता है, क्योंकि आप अपनी उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाता है जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो आप, मुझे याद है कि मैं बिल्कुल, मेरी शादी को मेरा ख्याल है एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, और खाने की टेबल के ऊपर मैं, मेरे मियाँ, मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई थी, और उन्होंने कुछ बात की, उन्होंने मगर उनके वो जो अल्फाज थे ना वो मुझे लगे, वो मुझे बुरे लगे, वो मुझे फील हुआ। तो मैंने बहुत पोलाइटली, हालांकि मेरा ख्याल है शादी के पहले हफ्ते में आप बहुत केयरफुल होते हैं, तो मैंने उनको बहुत प्यार से, बहुत अदब से मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मम्मी आप ये बात जो कह रही है ना, मुझे पता है आपकी शायद ये नीयत नहीं है, इंटेंशन ही नहीं, लेकिन आपके ये अल्फाज कहने से ना मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि इट्स अफेक्टिंग मी। एंड आई थॉट माई हस्बैंड जस्ट लुक्ड एट मी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो। अच्छा, वो बिल्कुल एकदम यूं हुई, और वो उठी और वो चली गई टेबल से। फिर जो मेरी क्लास हुई है उसके बाद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं मेरी मियाँ के हाथों, मैं कहा चलो है ना तैयारी कर लो, वापस जाना है अब तो। मैं किचन में थी, मैं ऑलमोस्ट रो रही थी क्योंकि आई फेल्ट बैड। तो वो एकदम से मुझे आवाज आई, आई एम सॉरी। देखो रियलाइज किया, तो मुझे, फिर मैं तो रोना शुरू कर दिया, मैं नहीं प्लीज आप, कहने लगी नहीं मैं गलत थी, इट वॉज आउट ऑफ लाइन, मुझे सोचना चाहिए था कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास करना चाहिए, कम्युनिकेशन, एंड आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे कहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात की, कुछ सालों के बाद, कुछ ऐसी बात कभी भी अगर जिंदगी में हुई है, शायद 2 दफा हुई है, और मैंने उनको कह दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत करवानी आती है, वरना मेरे इर्द गिर्द बाकी जितने लोग हैं ना, दे वॉक ऑन थिन आइस, कि मुझे बुरा ना लग जाए, मम्मी को ये ना ऐसा हो जाए, वो ना हो जाए, कहने कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बहुत करती हूँ। और वही चीज अगर आप तड़प के मैं ये सोचती थी कि मेरी अपनी जेठानी, जो कि मुझे, मैं कहती हूँ उस ज्यादा नफीस इंसान कोई नहीं है, शी ऑलवेज ट्राइड हर लेवल बेस्ट कि वो उनको खुश करें, उनके आगे बोले ना, कभी अपनी ख्वाहिशात, वो डरी रहती थी, सहमी रहती थी। मैं कहती थी नहीं, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, और दूसरा भी अच्छे बुरे लोग वो भी उस बात को समझ लेते हैं। हाँ, बदतमीजी की गुंजाइश, देखो अगर बदतमीजी से बात कहती ना तो बात अलग हो जाती, बात हो जाता ना, लड़ाई वो कभी भी नहीं आके रियलाइज करती। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी से गलती हो गई है ना, तो वो तो खैर बड़ी थी, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर किसी से गलती हो गई है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप ये लफ्ज़ कहना सीखें कि मुझे माफ़ कर दें। इस लफ्ज़ में बड़ी गहराई है। सॉरी तो हम अपनी हाउस हेल्प को भी कह देते हैं, सॉरी बेटा इधर से नहीं इधर से कर दो। जब आपके मुंह से निकलेगा ना मुझे माफ़ कर दें, तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़। आई थिंक नीयत है ना, आप किस नीयत से बोल रहे हैं, किस नीयत से बोल रहे हैं। सॉरी कहना भी आसान नहीं होता। नहीं सॉरी हम आजकल बोल देते हैं, सॉरी जैसे हर किसी को आई लव यू कह देते हैं, जैसे लव यू हर किसी को बोल देते हैं। तो ये आप सोचें कि यार अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे आगे से ये कहना है कि मुझे माफ कर दे। आपकी ईगो कितनी हर्ट होगी या कितना आप सेटिस्फाइड होंगे, इसका फर्क आपको तब पता चलेगा। तो ये भी बड़ी गहरी बात है। अच्छा, मैं आपसे भी बल्कि समझ ही जानना चाहूँगी, जब शादी हुई थी तो आपने फिर इस बात का कैसे ख्याल किया? आप कहते हैं कि आप भी बिल्कुल ऐसी थी, तो आपको फिर कब समझ में आया कि मैंने एक बाउंड्री सेट करनी है, या आप अभी भी उसमें है? नहीं, जब मेरी शादी हुई तो मामूजाद हैं मेरे फैसल, मेरे मामू बहुत सख्त मिजाज थे। मेरी मुमानी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो तुम शादी तो कर रही हो, मैंने कहा मैं तो फैसी से कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, जाना तो तुमने वहीं है, और वो बड़े सख्त मिजाज हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। हमारा साथ रहा 8 साल। उन्होंने मेरी तरफ कभी गुस्से से देखा भी नहीं था इन 8 सालों में। मुझे नहीं पता अब फैसल के साथ वो बात करते थे या किस तरह से करते थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे उनसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो
मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। और मेरी सास तो खैर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपको पता है ना, नंदों के साथ एक चीज़ चलती है। मैं जब ब्याह कर गई, मैं अपने घर में बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। मैं ऐसी कुकिंग करती थी, मम्मी कहती थी रात में तुम बनाओ खाना। तो मैं क्या करती थी, जब मेरी टर्न होती थी, मैं फ्रिज खोलती थी, मैं कहती क्या क्या पड़ा हुआ, क्या क्या, सब निकालती थी। प्याज लाल किया, उसमें वो सब्जियां डाली और उसमें फिर चावल डाल दिए और मज़ेदार सी एक डिश तैयार हो जाती थी। तो इन चीज़ों ने मुझे खैर खाने में बहुत हेल्प की कि क्या चीज़ आप किस में मिक्स करें तो अच्छा जायका होगा। अब ये नहीं कि माश की दाल पड़ी हुई है वो डाल के आप बना दें, या भिंडी पड़ी हुई है वो डाल के चावल बना दें। तो आपको ये बेसिक्स हैं आपके खाना बनाने अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन ये भिंडी को चावल के साथ ही नहीं करेगा ना, लेकिन जिसको नहीं आता वो तो इसी तरह करेगा ना। तो मैंने इस तरह से, तो मुझे लगता था भाई मैं तो जबरदस्त कुक हूँ। लेकिन जब मैं शादियों की, मेरी नंद एक्सपर्ट थी खाने की, क्योंकि मेरी सास बीमार रही सारी जिंदगी, तो उन्होंने ही घर देखा मेरी नंद ने। तो वो जब खाने बनाती थी ना, तो मैं किचन के दरवाजे के कोने में ऐसे खड़ी होती थी कि जैसे मैं एक नौजायदा बच्चा हूँ जिसे कुछ नहीं आता। उनकी कहती थी अच्छा इतना ज़्यादा बना लेती हैं, उफ 10-10 किलो फ़िश फ्राई कर रही हैं, मसाला लगा रही हैं, ये 2-2 किलो 3-3 किलो की बिरयानी बना रही हैं। तो मैं हाथ ही नहीं डालती थी, मेरी ज़रूरत ही नहीं होती थी कुछ करने की। लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं नहीं आए ना बनाएं, आप बनाएं। तो मैं अपने हिसाब से करते करते मैं उनके मुताबिक हो गई। क्योंकि आपको बेसिक पता हो ना तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। लेकिन फैसी थोड़े से मुश्किल थे हमेशा से। फैसी को बस अपनी चीज़ें बहुत, ये सबसे बड़ी बात कि एक दिन तो नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हुए बताएंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गई है छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे पास कितना टाइम है साथ के? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक से जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपकी माशाल्लाह से ससुराल में सब अच्छे थे, लेकिन आपके हस्बैंड, क्योंकि यूजुअली जो है ना हस्बैंड ज़रा टफ निकलते हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे थे ना, अभी भी हैं कि कायदे आज़म का रुख भी सही होना चाहिए, वरना इधर आओ सबा, ये नोट सही करके रखो वॉलेट में। तो वो ऐसे थे, जूता अगर इधर से इधर पड़ा हुआ है तो कहते थे मेरा जूता कहाँ है, तो वैसे ये तो पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों पड़ा है, मैंने यहाँ रखा था। तो इस कदर मतलब मुझे मेरे सास ससुर वही थे। तो मैं वीक भी हो गई, मैं ये सोचती थी यार इतनी मोहब्बत की शादी की थी, तो इनमें तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि अच्छा अगर मैं वैसी होती तो मैं रह जाती, मेरे में कॉन्फिडेंस शेक हो जाता, मैं कहती अच्छा मैं ये करी, मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट किया हुआ था। तो मैंने लंबी सांसें ली और मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन अपनी राइट पर बात जरूर करनी है तरीके से। तो आपका अपनी राइट पर बात करने का पूरा राइट है, लेकिन उसका एक तरीका है। तो इस तरीके से किया कि आज फैसी कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, तुम हथौड़े नहीं मारने होते कि मैं सही हूँ, सही करें वरना ये हो जाएगा, ये हो जाए, इस तरह मामले सही नहीं होते। मामले हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, कॉम्प्रोमाइज से और टाइम के साथ ठीक होते हैं। तो टाइम का इंतजार जरूर करना चाहिए। यूजुअली लोगों को लग रहा था टेलीविजन पे जो खवातीन आती है ना तो बड़ी डांडी होती होंगी ना, ये तो अपनी उंगलियों पे सबने चाहती होंगी, लेकिन आप घर आए तो देखें। Exactly. मैं लाहौर जाती हूँ तो मदिया में ऐसे होती हूँ, मैं नहीं सोचती कि मैं खैर मैं वैसे भी नहीं सोचती, मैं कहती हूँ मैं तो एक्टिंग ही नहीं आती, पता नहीं कैसे नाम बन गया, मैं तो आज भी यही सोचती हूँ। तो लाहौर जाके तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती, सिर्फ घर के साथ लग जाती हूँ। तो आपको ना यहाँ से भी ना इधर रहना चाहिए, ग्राउंडेड। बिल्कुल, बहुत अगर आपका दिमाग ऊपर हो गया ना तो बस फिर सब कुछ गायब हो जाएगा, तो आपका सिर्फ लाशा रह जाएगा। लाशा से कदमों के लिए जमीन तो ऑलरेडी निकल जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जरा हिना जी भी ऐड करना चाहती हूँ उन खवातीन के वाले से, क्योंकि देखें हम तो रिलेशनशिप, हम तो अपनी बात करें ना, क्योंकि हम हमारे लिए सेल्फ लव कितना मैटर करता है। उन्होंने कैसे अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की, लेकिन वो जल्दी से बचाऊंगी आप उस पॉइंट। मैं बहुत ब्रीफली बात करूँ, बिकॉज यू सी आजकल हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब भी बैठते हैं और जो शादीशुदा खवातीन होती है वो इवेंचुअली जाकर बात रिश्तों पे और यहाँ पर और इन लॉस पर उन पे होता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का, खवातीन का,
جو شادی شدہ نہیں ہیں. ان میں ڈیورسیز بھی ہیں, ان میں ایسی بھی خواتین ہیں جو جن کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے, اور ایسی بھی خواتین ہیں جو ماں نہیں ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ خواتین کو ہم یہ نہیں سکھا رہے کہ آپ نے گلٹ میں نہیں رہنا. اگر آپ کی بچے نہیں ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے. آپ کو کیوں گلٹ میں رکھا جائے, اور آپ کیوں اس گلٹ میں رہیں کہ میں شاید ایک ایز اے عورت میں مکمل نہیں ہوں, میں ایز این انسان مکمل نہیں ہوں. ڈیورسی تب بھی آپ میں آپ کو کہنا, میں آپ کو ہر سیناریو میں کہہ رہی ہوں, اگر بچے نہیں ہیں تو بھی آپ نامکمل ہیں, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ نامکمل ہیں, کیونکہ آپ نے تو مطلب عورت کی زندگی تبھی ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ ہوتی ہے. نہیں, شادی زندگی کا ایک بڑا اہم, بہت خوبصورت اور بڑا ضروری مرحلہ بھی ہے, ایک فیز بھی ہے. لیکن ماں بننے کا بھی ایک اپنا الگ ایک فیز ہے, لیکن ایک انسان ہونے کا, ایک منفرد انسان ہونے کا سب سے بڑا فیل ہے. کیونکہ اگر آپ کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, آپ کی کوئی شادی اور بچہ کام نہیں آئے گا اگر آپ بذات خود کمزور ہوں گے اور آپ انسیکیور ہوں گے. سو وہ جتنی خواتین ڈیورسیز ہیں یا شادی شدہ ہونے کے باوجود ماں نہیں ہیں, یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اپنی پوٹینشیل کو سمجھیں. خود آگہی, میں بار بار کہوں گی, سیلف لو شروع ہوتا ہے سیلف اویئرنیس سے. اپنے آپ کو, اپنی قدر و قیمت کو اتنا کم نہ جانے. میری ایک دوست اس وقت آئی سی یو میں ہے, ٹھیک ہے, اس کی زندگی, اس نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے. ایک برائٹ مائنڈ, ایک انڈیپینڈنٹ, پیاری شکل کی ذہین عورت, صرف اس چکر میں کہ I need to be Mrs. something. غلط شادی کی, تھوڑی لیٹ بھی کی لیکن غلط کی. اس ڈیسپریشن میں شادی کر لی کہ میری شادی ہونی چاہیے. وہ شخص غلط تھا, ہر لحاظ سے غلط تھا. تو پھر کیوں, اور رہی اس شادی سوسائٹی کے وہ پریشرز کی, مطلب اس کو لگتا تھا کر لی, بٹ وائی ان آئی سی یو. نہیں, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, کر لی غلط شادی کیونکہ جی ایک ٹھپا چاہیے تھا کہ شادی شدہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس شادی میں رہی کیونکہ اس شخص نے آہستہ آہستہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ختم کر دیا, تو آپ میں وہ ہمت نہیں تھی کہ آپ اس شادی کو توڑ کر نکلیں. اور اس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ بیمار ہو گئی, وینٹ انٹو ڈپریشن, بلڈ پریشر کے ایشوز ہو گئے, ڈائبٹیز ہو گئی, ساری اسٹریس ریلیٹڈ چیزیں ہوئی. اور پھر اتنا اپنے آپ کو اس بلیک ہول میں چلی گئی, اپنی میڈیکیشن بھی چھوڑ دی, اینڈ شی ہیڈ اے اسٹروک. She is now in ICU with a brain hemorrhage. ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں اس کو شفا دے, صحت کے ساتھ زندگی دے. لیکن وہ ایک سیلف ڈسٹرکٹیو ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے کیسے اپنے آپ کو نگیٹ کر دیا. اس نے بالکل نا اپنے آپ کو چھوڑ دیا. میں نے کیا سب سے پہلے یہی بولا تھا, ہر چیز یہاں ہے, مینٹل سکون لاؤ سب سے پہلے. آپ لوگ اپنے مینٹل پیس کے لیے, وقت مجھے بتائیں, آپ لوگ اپنے مینٹل پیس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ویسے تو میں ہر وقت بزی رہتی ہوں, مگر میں کوئی چیز طاری نہیں کرتی اپنے اوپر, ٹھیک ہے. وہ والی بات ہے کہ جو ہونا ہے, پچھلا جو ہوا سو ہوا, میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں. یہ میرے اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی, شاید مجھے اسے بہت سکھانا ہے. اور وہ والی بات ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اسٹرانگ بنتی جا رہی ہوں, میرا کنیکشن اور اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کہ جب آپ کو پڑھتی نا, پھر آپ کو میریکلز سامنے آتے ہیں کہ یار یہ اللہ میاں سن رہے ہیں, وہ والی بات. تو کبھی بھی یہ نہیں, میں ابھی بھی کہتی ہوں, جس سے ہے لوگ کہتے ہیں اب کیا کرنا, شادی چھوڑو. میں کہتی کیوں نہیں کرنا, اگر ہاں اللہ تعالیٰ اگر اچھا انسان ہے, یہ نہ ہو کہ میں کہوں گیا میں اکیلے زیادہ اچھی تھی اور ریگریٹ نہ ہو, تو مجھے دینا, ورنہ میں اس میں بہت خوش ہوں. صحت سب سے پہلے دینا, میری اولاد کی خوشی, اولاد کا غم کبھی مت دکھانا. پلس یہ اب رہا اپنے سیلف, اس کے لیے مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہوں, میں کسی کو مجھے خود اپنے آپ سے پیار ہے. آئی وانٹ ٹو لک گڈ, کہ بال بھی میرے صحیح ہونے چاہیے, کپڑے بھی شوق ہے پہننا, شاپنگ کرنا, آئی لو شاپنگ. اب جا کے ہوتا ہے کہ یار کتنی چیزیں ہیں, جگہ نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی اگر چیزیں ختم ہو جائیں, مال. ابھی میں اور سبا بات کہہ رہے تھے, میں کہا مجھے اگر تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے 3-4 دن آ جاؤں ایسا ریکارڈنگ میں کیسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا, سم تھنگ مسنگ, ایک ہی مال. کیونکہ میں ویسی بھی بہت آؤٹ گوئنگ ہے, فرینڈز ہیں, یہ ہے, تو یہ ہوتا ہے مال جا کے. مجھے پتہ نہیں وہاں کی جو ایک وائب ہوتی ہے نا, اب لوگ کہیں گے عجیب فنی سی بات ہے, لیکن میرے لیے فنی نہیں ہے. فار می
मुझे जैसे कहते हैं कि एक एनर्जी मिलती है, इट्स लाइक दैट, आई फील हैप्पी, चाहे मैं कुछ ना करूं, एक कोन खाकर आ जाऊं, बट आई फील हैप्पी। मैंने अपने, क्योंकि मुझे माइंड, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, वरना मैं बाजार जाना, काम करना, एटलीस्ट आई एम बिजी, मैं सोचती नहीं हूँ। और रात में मुझे होता है अपना नेटफ्लिक्स, उसकी मुझे अब होने लगा है, मी टाइम है आपका जबरदस्त। जल्दी से बस जाएं, घर कहीं जाना है दावत में, अब मुझे देखना है, पिक्चर देखनी, अपना कमरा, अपना नेटफ्लिक्स। तो ये छोटी छोटी सी चीजें खुशी देती है हैं आपकी जो मुझे सास को। खुशी देती है। इट्स जस्ट दैट, घर साफ सुथरा हो, मुझे ये होता है बस। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हुमा है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक। हुमा, क्या कहना चाहेंगी? मदिया, पहले तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी आपकी तारीफ करनी है। आपने जो ईद का शो किया था लाल पे, बहुत जबरदस्त किया था। यकीन जाने कि आप तो वहाँ पे शो कर रही थी ना, जो बातें हो रही थी ना ईद के हवाले से कि ईदी, और वो जो 100 आपके अभी भी आज भी आई हैं गेस्ट, ये बात कर रही थी। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि 500 या 1000 और 100 या 200 तो लोग शाये करते हैं, यार ये कैसे दे। पर जो उन्होंने बात करी ना, तो इस तरह जैसे बिल्कुल हमारे दिल से नहीं छू जाती और आंसू निकल आते हैं। आप तो वहाँ शो कर दी थी वो चीजें करके, वो अम्मी नानी और वो ईदी लेना, यानी कि बड़े होके भी मैं कुछ छोटी हूँ तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी। मैंने आपका बहुत दफा ट्राई किया कि अल्लाह में ये बात हो जाए। उस दिन तो बात हुई थी, पर मैं आपकी तारीफ करने के लिए कि मदिया ने इतना प्यारा शो किया है कि मदिया को बहुत बहुत यानी कि तारीफ की मुस्तहिक है। और फिर उसके लास्ट डे आपने किया, वो भी बहुत जबरदस्त किया। अपने दोनों दिन आपने बहुत जबरदस्त शो किया, यानी कि जो दिल से छू जाता है ना। अगर मेरी अम्मी भी होती ना, वो भी खुश होती। ये आपकी तारीफ एनर्जी दे रही है मदिया को, और माशाल्लाह। सी जी, और आप भी थी ना उस शो में, जो आपने बिल्कुल बात की ना, वो बहुत जबरदस्त की थी, यानी कि बहुत जबरदस्त बात की थी। एक रिलेटेड, एक होता है ना, हम ये सोचते हैं भाई आप तो मीडिया पे बैठे हैं, बातें बना रहे, पर बातें नहीं, वो बिल्कुल आम हमारा जिसे मिडिल क्लास जो तबका होता है ना, उनसे रिलेटेड बात की थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच हुमा जी, आपने कहा हम एग्जैक्टली बस ये कि ये हमारे जॉब का बस क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारा दैट्स हाउ वी रन जॉब नहीं समझते ना मदिया, ये होस्ट के लिए एनर्जी है। बिल्कुल ऐसे तुम यहाँ है। बैठी हो, तुम्हें जब कॉल्स आती है तारीफ अंदर से मोटिवेशन है, मोटिवेशन, यू फील हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग को वैसे मी टाइम और क्या कैसे खुद को एंटरटेन करते हैं? आप अभी बात हम कर रहे थे ना कि औरतें हमेशा गिव करती हैं, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हमें गिवर बनाया है, तो मैं उस चीज को फाइट नहीं करती। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि मेरा सेल्फ लव यहाँ तक है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं आई एम नॉट अ शॉपर, मुझे मॉल में वो वाली खुशी नहीं मिलती जो आप लोगों को मिलती है, which is ठीक, which is fine also, exactly। लेकिन मुझे जब मी टाइम मेरा होता है, मैं उन लोगों के साथ गुजारूं जिनके साथ मिलकर मेरा दिल खुश होता है, मैं उनको वक्त दे सकूं। मैं कुछ कॉजेज को सपोर्ट करती हूँ, मैं अपना वक्त वहां देना चाहती हूँ, तो मुझे उस गिविंग से लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा होता है। ना आपका शहर है, हमारा हम दूसरे शहर के लोग मुझे वो जो होता है ना कि एक अपनी शायद वो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने कितना गिव करना है। ये मेरा एक रूल है कि मैं उतना ही करूंगी जब करके मुझे खुशी हासिल हो, मुझे तकलीफ ना हो। हाउ डू यू पैम्पर योरसेल्फ? अपने को पैम्पर कैसे करती हैं? जब अपने ऊपर बहुत प्यार आता है क्या करती हैं? अपने ऊपर बहुत प्यार आता है तो आता भी नहीं आता है, बताएं। नहीं, मुझे बहुत प्यार आता है। गुड। मुझे अपने ऊपर बहुत प्यार आता है। मैं आई डोंट नो, आई कांट डिफाइन कि मैं कोई एक चीज करती, मेरे उस पर डिपेंड करता है, मेरे मूड पे। कभी मैं सालों चली जाऊंगी, पूरा दिन मैं गुजार लूंगी, और कभी मैं सिर्फ लेट कर कोई मूवी देख लूंगी, कभी मैं डांस करूंगी अपने कमरे में म्यूजिक लगा के, कभी मैं किताब पढ़ूंगी, कभी मैं इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू डू। समझ, आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं और आपका मी टाइम क्या है? अच्छा, मी टाइम मैं आप सबको एक बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो लगता है ये मैसेज ही होगा कि आप लोग हमें देखते हैं स्क्रीन पर, फिल्टर भी लगे होते हैं, कुछ स्क्रीन भी होती है, हम बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे भी आप जैसे ही हैं, हमारी एज भी आपकी तरह बढ़ती है, तो हमारे चेहरे पर भी वो जो लाइंस और वो सब कुछ असरात आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप किसी के भी चेहरे पर मेकअप भी उसी सूरत ग्लो करता है अगर अंदर से स्किन ग्लो कर रही हो। और स्किन ग्लो कब करती है? जब आपका दिल खुश है, जब आप यहाँ से मुतमईन है। तो सबसे पहले सेल्फ लव की जब बात करते हैं ना, तो खवातीन को सबसे पहले
यहाँ से रिलैक्स होना है। Exactly. अब वो कैसे होना है, आप म्यूजिक सुने, आप किताब पढ़ें, आप बच्चों के साथ खुश हैं वो करें, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करें। और अभी कॉलर ने बात की ना कि आप ईद पर जो भी किया, तो अभी मैं समझती हूँ कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि वो सारी चीज़ें आज भी मेरे घर में होती हैं। ईदियाँ बढ़ती हैं, देगें बनती हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है। तो लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है मिलने मिलाने से कि दूसरी पार्टी, जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, जो मेरे घर आ रहे हैं या जिनके घर मैं जा रही हूँ, वो कितने पॉजिटिव हैं। तो दूसरी अहम चीज़ है कि आप यहाँ से कितने पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपकी चेहरे की ग्लो का राज है। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप पॉजिटिव सोचें। आप कह रहे हैं ना ये गिलास पड़ा हुआ है, आधा गिलास है, तो उसे आप कहें कि आधा भरा हुआ है, ये मत कहें कि आधा खाली है। तो पॉजिटिविटी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब सीखा है बस सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और जिंदगी के हर मरहले में आप सीखते हैं। ये कह रही हैं मैं आज भी, ये जब आप उस तरह के स्टेजेस से गुजर कर इस टाइम पर जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बिठाया जाता है कि हमारी बातें सुनी जाएं और उन बातों को करती ना हाँ, बातें, हाँ, वो तजुर्बा। हमारा तजुर्बा है। और आपकी माओं का भी तजुर्बा है, आपकी खालाओं का भी तजुर्बा है। खुदा के लिए आप किसी बड़े को ये मत कहें कि इन्हें क्या पता। आपको क्या पता उन्होंने किस कदर जी बिल्कुल बात सही है। पापड़ बेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं, तजुर्बे से बड़ा उस्ताद ही कोई नहीं। उसके लिए टाइम पीरियड पॉजिटिविटी का एक बहुत, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जिन लोगों के साथ बैठकर मुझे खुशी मिलती है, मैं वहां जाती हूँ। जहां मुझे नेगेटिविटी फील होती है, मैं अपने आप को वहां से लगाती हूँ। मैंने अब सीखा है, अपने आप से कहती हूँ नो करना सीखो। अपने आप को खुद बोल रही होती हूँ, वरना मुझे होता है थकी भी होंगी यार, उसको बुरा ना लगे। तो अब जैसे और खुद को बहुत बुरा लगा। और किरण कैसी नेचर है ना, वो कह देगी कुछ नहीं है तो नहीं, दिल चाह रहा, अपने ऊपर देखो। अब मुझे होता है कि नहीं यार, उसने बुलाया। ऐसे इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है, मैं कहती लेकिन उनके इम्तिहानात बहुत हैं, नहीं गुजर वो हाँ लोग आपसे दुआ भी मांग लें, उनको पता नहीं, मैं कहती हूँ कभी दिल रखें, कभी ना रखें। हाँ, मगर अब कभी रखें, कभी बहुत थकी भी होंगी। अब मेरी मम्मी भी कहती है देखो एक उम्र होती है, तुम बिल्कुल आराम नहीं करती, इधर भाग उधर भाग, इसने बुलाया उसने बुलाया। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि दिल तो नहीं, बुरा थोड़ा ना रुक जाओ। मगर फिर मैं कहती हूँ अच्छा ओके, जरूरी नहीं। फिर अपने आप से थोड़ी खुद काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं, अच्छा ना भी करूंगी, नहीं जाऊंगी, फिर मुझे बेचैनी लगेगी, चली जाती है। अच्छा आप बताएं, पैम्पर करने के लिए खुद को क्या करती है जब आपको खुद बहुत प्यार होता है? वो तो हर वक्त खुद पर प्यार आता है। मैं तो अब हम दोनों जाएंगे मॉल में। यस, मैं मुझे भी मॉल जाना, भले कुछ ना लें आप, हाँ, एक कप कॉफी पीकर आ जाएं, लेकिन मॉल जाके अच्छा अब कुछ नहीं, इस उम्र के इस हिस्से में ठहराव क्यों आ जाता है? आज से कुछ 10-15 साल 20 साल पहले ये होता था। अब मार्केट गए, एक अजीब सी ना अंदर हलचल चल रही है, यार ये बैग की भी कमी है, ये जूते भी नहीं है, यार ये ज्वेलरी अच्छी है। अब जाते हैं, जो चीज़ देखते हैं बहुत बड़ी भी, हाँ, माशाल्लाह बहुत है। तो आप में ना एक ठहराव आ जाता है, फिर आप वो चीज़ पिक करते हैं जो कि बहुत ही दिल को लगती है। और जिस मैं सेल से चीज़ें उठाती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम लोग बिला वजह पैसा नहीं खर्च करते। मैं वहीं जाती हूँ, हाँ, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ सेल होती है, और सेल से हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए सैटरडे को या संडे को मैं चली जाती हूँ मॉल, और फिर वहाँ पर दिन गुजारती हूँ। अगर लाहौर होती हूँ तो मैं ये दीवार निकलवा देती हूँ, वो सोफा चेंज कर देती हूँ, वो कर्टन चेंज कर देती हूँ। लाहौर का मॉल तो बहुत अच्छा है, डॉलमेन। अच्छा, मेरी अल्टीमेट पैम्परिंग पता है क्या होती है? कि अगर मैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो दस्तयाब नहीं है, कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊँ और मैं वॉक करूँ, हाँ, मैं कहीं चली जाऊं, मुझे ट्रैवलिंग, मैं सड़कों पे वॉक करूं, मेरा जहां दिल चाहे मैं बैठकर कॉफी पी लूं, मैं चाय पी लूं, मैं चल पड़ूं, मैं पार्क्स में जाकर बैठ जाऊं, मुझे वो चीजें, अच्छा इससे नेचर मेक्स मी हैप्पी। इससे बताती हूँ, मैं एक कोई 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और घूमने फिरने का मुझे बहुत ही शौक था। तो मुझे ऑफिस वाले ने मुझे कहा कि मदिया आपको ना देख के हमें डर लग रहा है कि आप कहीं गिरेंगे ना तो कुछ हो जाएगा, तो ना आप जरा वैसे छुट्टी ले लें, छुट्टी आप एंजॉय करें। अब मुझे घर तो टिकने की आदत थी, मैं लाहौर चली गई, लाहौर से वापस आई, मैंने कहा फैसल मुझे तो सुकून ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, हमें तो हड्डी को सुकून नहीं। मैंने कैसे कहते हैं हम टर्की चलते हैं। अच्छा जी हम चले गए, टर्की चले गए। अब क्योंकि वो आपकी वॉक से मुझे आदत
सुकून, अब हमें टैक्सी ना मिले, अब मेरा तो मियाँ से कहा, मैंने कहा तुम परेशान ना हो, मैं वॉक कर लूँगी। मैं थी कराकोए बिल्कुल पानी के पास और इस्तगलाल की एक बंदी जिसका 8 मंथ, जी जिसका 8 मंथ, मैंने अपने मियाँ से कहा, मैंने कहा आपने फिक्र नहीं करनी, मैं वॉक करूँगी। मैं दीवार पकड़ के मैंने वो पूरी कोई 8 मंथ की, मतलब जो मुझे रास्ते में देखे उसको भी डर लगे कि ये क्या चीज़ चल रही है, बट मैंने वॉक की क्योंकि अच्छा मैं वॉक एंजॉय भी करती थी और मुझे टेंशन थी। मैंने कहा मेरी मियाँ को टेंशन होगी कि यार हमें टैक्सी नहीं मिल रही, मेरी बीवी क्या करेगी। मैंने कहा फिक्र न करें, वो मुझे मुड़ के देखता है तुम ठीक हो, मैंने कहा ज़बरदस्त ठीक। लेकिन अलहदा बात है कि फिर जब पहुंचे तो मुझे फिर बुखार भी हो गया, मैं थे कि मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में काश को ये बात समझ ले कि हमारे मुल्क में फुटपाथ्स नहीं हैं। हाँ। हमारे मुल्क में वो आपने पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली माहौल नहीं रखा है, जो पहले होता था और सेफ जो भी पहले नहीं है। मेरे बचपन में मुझे याद है वॉक नहीं, सेफ्टी को भी आप छोड़ें, दुनिया का कोई मुल्क सेफ नहीं है, लेकिन पेडेस्ट्रियन माहौल नहीं रहा, इसीलिए सड़कें सुनसान होती हैं, इसीलिए आप सेफ नहीं होते, वरना लोग चल फिर रहे हो, सड़कें भरी हुई होती हैं, लोग चल रहे होते हैं। बिल्कुल। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की कि वो खुली फिजा में चले। दैट इज माय जैसे रिकॉर्डिंग से मैं कहती हूँ काश इंसान मोहल्ले में बाहर निकल जाए, मगर नहीं निकल सकते, वरना मैं वॉक, अब मैं अपना टेरेस बना तो मैं वहाँ वॉक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज भी करना अच्छा। और एक मैं अकेले जाके ना, मुझे दोस्तें कहती है मूवी, मैं अगर कुछ नहीं है, अगर मैं फ्री हूँ अकेले बैठ के अकेली जाऊंगी, मूवी देखकर आ भी जाऊंगी। हमारे मुल्क में तो वो भी सहूलत नहीं है। हाँ अब तो फिल्म भी नहीं आ रही। नहीं इंग्लिश मूवी है, कभी कोई है तो कभी मैं कभार देख कोई ले- आ जाती है। नहीं मुझे बहुत शौक है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम। अच्छा मुझे शॉपिंग अकेले करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई मैं भी ना हो। कोई तंग ना करे जिसके मुझे। लिए नहीं, जिसके लिए मुझे हर दुकान पे रुकना, मुझे पता है मुझे वहाँ जाना है। she's वहाँ right, रुकना है, मुझे वहाँ she's नहीं। right। कोई मेरे साथ मेरा कोई भी ना है। तो एटलीस्ट मुझे गांठी डाल देता कि बस कर बस कर पड़ी दो। है, तो मैं कहती मेरे साथ कुछ है जो मुझे माथा अकल की मत दे। ये आपका वो टाइम है ना जो हमारा पहले था, हाँ। तो जब हमारे टाइम पर आएंगे आप कहेंगे नहीं ये भी है, ये भी है। नहीं कुछ नहीं अल्लाह है। करे जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज ही रोज मेरे मियाँ तंग है, तुम्हारे डिलीवरी वाला आया हुआ है और उसको इतने पैसे देने, तुम कितनी शॉपिंग करती हूँ। मैं आज सोच रही, मैंने कहा यार वाकई सारे पैसे तो मैं जो है ना अपने कपड़ों पे उड़ा देती हूँ, लेकिन समहाउ पे मुझे खुशी होती है कि कुछ बहुत अच्छे कपड़े लगे मैं आगे गिफ्ट भी कर देती हूँ। लेकिन वही बात यह है कि आप खुद से मोहब्बत करें, खुद की इज्जत करें। मुझे लगता है पंजाबी हाउस होल्ड में, क्योंकि मेरा पंजाबी फैमिली से ताल्लुक है, वहाँ पे सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ये है कि आपके घर आप अपने बच्चों को रिकॉर्ड लगाते हैं, उससे आपको पता है कि आपके बच्चे की ना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी मुतासर होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता। बहुत से लोगों में आपको तारीफ लेनी नहीं आ रही होती। जैसे मुझे बचपन में, क्योंकि हमारे अम्मा ने कभी तारीफ की कि बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे, तो हाँ, अभी भी तारीफ लेते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को तारीफ लेना भी सिखाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी भी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।